morning, everybody. I hope you are fine. I'm Smina Alam, teacher GHS Noah Gabra. Yesterday, our topic was Papa G's mouth. We came to know about its first paragraph, and today, inshallah, we will study its second paragraph. I am going to start the reading. For the rest of that day, Papaji sat in the veranda and started strongly out at an ornamental garden, ignoring the plates of food that Ocho Maria bought him. Late at night, he went into his study and bought him his favorite mahogany rocking chair. He put it down in the middle of the driveway and smashed it into little bits with a plumber's monkey wrench. He left it there in the moonlight, a heap of worn wicker and splintered wood. He never touched Mamachi again, but he never spoke to her either as long as he lived. When he needed anything, he used Kocho Maria or Baby Kochma as intermediaries. In the evening, that he knew visitors were expected, he would sit on the veranda and sew buttons that was not missing onto his shirts to create the impression that Mamaji neglected him. To some small degree, he did succeed in further ordering Ayamyam's view of working wives. He bought the sky blue Plymouth from an old Englishman in Minor. He became a familiar sight in Ayamnam, coasting importantly down the narrow board in his white car, looking outwardly elegant but sweating freely inside his woolen suits. He would not allow Mamaji or anyone else in the family to use it or even to sit on it. The Plymouth was Papaji's revenge. Papaji had been an imperial entomologist at the Pusa Institute after independence. When the British left, his designation was changed from imperial entomologist to joint director entomology. The year he retired, he had risen to a rank equivalent to director. Now I will translate this paragraph into Urdu. As you know that the son of Papaji came to home for his summer vacation when he saw that his father badly beat his mom. He told her father, I never want this to happen again, ever. तो पापा जी का जो बेटा था वो घर आया था ऑक्सफोर्ड से छुट्टियां गुजारने के लिए। जब उसने देखा कि मेरा बाप जो है वो मेरी माँ को बुरी तरह से मारा है, तो वो उसके पास गया और अपने बाप को कहा, आइंदा ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। अब यहाँ से आगे देखते हैं। तब बाकी बचे दिन भर के लिए पापा जी जो था वो बरामदे पर बैठा रहा और पत्थर सा बना हुआ बाहर वाले सजावटी बाग की तरफ देखता रहा। खाने की उन प्लेटों की तरफ ध्यान न देता था जो कोचो मारिया उसके लिए लेकर आई। रात को देर गए अपने मुड़ने वाली मतलब इधर उधर घूमने वाली जो कुर्सी होती थी, मोगनी लकड़ी की बनी हुई जो उसकी मनपसंद की कुर्सी थी, वो अपने पढ़ने वाले कमरे में ले जाया करता था। उसने उसे सहन वाले रास्ते के बीच में ही रखना और उस पर प्लम्बर नल को ठीक करने वाले जो पेचदार जो चोटे मार मार कर तोड़कर उससे बनाए थे छोटे छोटे लकड़ी वाले जो टुकड़े होते थे, उससे बनी हुई वो उसे रास्ते के करीब ही रखता था। उसने उसे वहीं चांद की रोशनी में छोड़ दिया था जो पॉलिश की हुई और लकड़ियों का ढेर अलग करके रख दिया था। इसने दोबारा कोचो मारिया को फिर कभी न छुआ न उससे बात की, लेकिन जितनी देर वो जिंदा रहा वो उससे कभी बात तक न की। जब उसे किसी चीज की जरूरत होती थी तो वो कोचो मारिया और कोचमा जो थी वो उनको इस्तेमाल कर लेता था। और शाम के वक्त जब वो जानता था कि मिलने वालों का आना मुमकिन हो सकता था, तो वो अपने बरामदे में बैठ जाता था और अपनी कमीजों पर बटन सिलने लगता था और वहाँ पहले से ही लगे हुए थे और ये ख्याल पैदा करने के लिए कि पापा जी उसकी कोई परवाह नहीं करती थी। कुछ हद तक वो कामकाजी औरतों के बारे में आयमन के बिशिंदों के दिमाग में गलत ख्याल पैदा करने में कामयाब हो गया। उसने हल्के पीले रंग वाली एक पिलाई मोट गाड़ी मनौर में रहने वाले एक बूढ़े अंग्रेज से खरीद ली
आमने वो एक जाना पहचाना नजारा बन गया और अपनी जोई तंग की हुई सड़क पर ठाठ से सवारी करता हुआ बाहर से देखने वाले शानदार लेकिन अंदर पोशाक के अंदर बुरी तरह पसीना बहाता हुआ वो मामा जी या इसके कुंबे में से किसी भी दूसरे को इसको इस्तेमाल नहीं करने देता था और इसमें बैठने नहीं देता था। ये प्लाई मोड पापा जी के पास बदला लेने के लिए एक अच्छी चीज थी। पापा जी पूसा इंस्टीट्यूट में एक एम्पेलिस्ट एंटोमोलॉजिस्ट माहिर हिजरियात में था। आज़ादी के बाद जब अंग्रेज चले गए तो उसके ओहदे का नाम एम्पेरियल एंटोमोलॉजिस्ट से बदलकर जॉइंट डायरेक्टर महकमा एंटोमोलॉजी कर दिया गया। जिससे जिस साल वो रिटायर हुआ वो तरक्की करके डायरेक्टर के ओहदे पर पहुंच चुका था। तो आई थिंक एवरीबॉडी हैज गॉट इट। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, थैंक्स।